Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video, जहाँ आज we will be talking about MS Excel and its formulas, right? So we did talk about MS Excel certain definitions क्योंकि कई बच्चों की demand आई थी that there are questions from MS Excel which are asked. And as far as I have seen the question paper, जो questions पूछे जाते हैं they are pretty simple. Right? So we'll try to make sure कि हम लोग break down करें चीजों को and we understand the functions which are mathematical, which are logical in their stance and Excel को जो most of the times people fear उस चीज को हम लोग थोड़े थोड़े examples के through समझने की कोशिश करें, right? So without wasting any further time, let's just first of all understand why do we use formulas in Excel. Now Excel एक ऐसी चीज है which helps you to maintain a record of something. बड़े बड़े organizations में, corporate offices में, we see that Excel की जो spreadsheets है, Google Sheets है, these things as an application, they are used. And I would highly recommend that if you do guys, if you guys do get the time जिसमें आप अपनी लाइफ में एक स्किल एनहांस कर सको तो यू गाइज शुड गो अप फॉर MS Excel जस्ट लर्निंग द बेसिक्स दैट आर देयर राइट बिकॉज इट इज मच अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड. Coming back again to why is it used? It is used ताकि हम डेटा को एक ही जगह पे ऑनलाइन तरीके से डिजिटल तरीके से गैदर कर ले. Now in the पुराना times, in the old times, we have seen that people used to maintain records of information by entering things manually. Diaries होती थी, registers होते थे attendance के लिए, so on and so forth, right? But just to reduce the same thing, number one, reducing the paper, going all economical and environmental, right? Secondly, making sure that you are digitally advanced, right? And thirdly, with the digital use of the data, you will have the data stored in the digital format. तो ये भी नहीं है कि आपका data usually delete हो जाएगा, alter हो जाएगा until and unless you delete that file, right? So let's move forward and understand that now why formulas are used. Most of the times Excel में जो चीजें होती हैं they are related to maths, right? And I'm not saying सिर्फ maths ही use होता है. We also see that बच्चों का नाम, right, their age, all these things they are, if Excel is being used in an educational institution, तो ये इस तरीके से use किया जाता है, right? Coming back to the point, why are the formulas used? The formulas are used to perform calculations, manipulate data and automate tasks within spreadsheets. तो spreadsheets कैसी दिखती हैं? If I try to talk to you all about it, this is how a spreadsheet looks like, right? We have alphabetical ranges, we have numerical ranges here. तो अगर मैं इसकी बात करूं, what does it stand for? It stands for A1. What does this stand for? B1. And अगर C के साथ मैं 4 की बात करूं तो this becomes C4. This tells us about हम किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं. तो this is basically a cell identifier, right? चलो, let's now move to another things as well. तो अगर आपको डेटा एनालाइज करना है, डेटा ऑर्गेनाइज करना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द कॉर्पोरेट ऑफिसेज, यू विल नीड टू मेक श्योर दैट आपको एक्सेल की नॉलेज है. ठीक है, चलो. The first formula to be discussed is how the basic syntax is there. तो जब भी whenever you will try to use any formula in Excel, you will have to use the equals to का sign. मतलब आपका फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू से बिगिन करेगा, चाहे मैं सम की बात करूं. सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना. ठीक है, तो अगर मुझे कोई वैल्यूज दी हुई हैं इन अ टेबल टाइटल्ड A, B, C, D, right? And here I am having 1, 2, 3, right? And I'm supposed to add the values of 4, 4, 4, right? These are certain values जो मुझे दी हुई हैं. So some brackets में A1, comma, कहां तक मुझे प्लस करना है? A1 से A3 तक अगर मुझे प्लस करना है तो I will write this formula, right? And I will close the brackets to make sure the formula, maths में भी तो ऐसे ही होता था, bracket close करने के marks कट हो जाते थे, right? So you'll have to make sure that you are doing these things on purpose and you know what should be the format, so to say. ये formula begin हो रहा है as we talked about. This has begun with
the equals to sign, ये formula is being used to add certain things. तो अगर 4 plus 4 plus 4 करेंगे, then what do we have as the answer? 12, right? So we have, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12. Correct? Formulas begin with an equal sign, arguments are enclosed in parentheses and separated by commas. तो जो argument आपको चाहिए, जहां का डेटा चाहिए, वो comma से आप लोग separate करोगे, parentheses लगाओगे, brackets लगाओगे. सेल रेफरेंसेस जैसे कि A1, A2, इसको हम सेल रेफरेंस कहते हैं कि मैं किस सेल की बात कर रही हूं. मैं A1 की बात कर रही हूं, मतलब 4 की बात कर रही हूं. A1 पे क्या है हमारे पास? 4 है. A2 पे क्या है? 4 है, राइट? So I am referring to a cell, उसको cell reference बोलते हैं. You can go and check out the video which is related to the definitions of Excel, right? Indicate where the formula operates. तो मुझे कहां से कहां तक चाहिए था? A1 से A3 तक चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे A3 तक चाहिए था, राइट? 4 4 4 तो हमें ऐड ही करना था. चलो, तो सम फॉर्मूला आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल. अलग एग्जांपल देखते हैं. अगर मेरे A में एंड देन 1 2 3 4, ऑलवेज मेक श्योर कि ये 1 यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा ये कभी भी नहीं होगा, बिकॉज सेल रेफर करने के लिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5, राइट? A6 7 8 9 10 so on and so forth. मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है. दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, राइट? व्हेन यू ओपन योर MS Excel, यू विल सी दिस पर्टिकुलर बार ऊपर, यू विल सी दिस पर्टिकुलर बार ऊपर. या तो आप फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर देयर ओनली. नीचे भी मिल जाएगा किसी सेल में. इफ यू फील लाइक यू वांट टू ऐड इट इन अ सेल, तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, राइट? सो इक्वल्स टू सम, and you do not need to worry because कि you are supposed to memorize all the formulas. No, it's just आपको उसके words पता होने चाहिए कि अगर मुझे add करना है तो मुझे sum करना है, अगर मुझे maximum चाहिए तो max है उसका formula, minimum है. And of course you will also get suggestions when you are typing something ना after the comma. Excel आपको साथ साथ में suggestions भी देता है. तो मुझे कहां से कहां तक चाहिए था. और एक चीज याद रखनी है, कोलोन के थ्रू या कॉमा से, दोनों तरीके से यू कैन सेपरेट द फॉर्मूला, सेपरेट द सेल रेफरेंसेस दैट आर देयर. तो मुझे सम चाहिए A1 से लेके A4 तक का सम चाहिए, टोटल चाहिए. व्हाट डू आई गेट एज द आंसर? वुड बी माय टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सेकेंड फॉर्मूला है हमारा एवरेज का. मैथ्स में भी यूज टू डू एवरेज कंप्यूट करने के लिए कि 5 नंबर्स की एवरेज कितनी होती है. कोई 5 नंबर्स हमें दिए एंड टीचर ने बोला उनकी एवरेज निकालनी है, राइट? सो वी यूज टू डू दैट. दैट्स आल्सो वेरी इजी इन एक्सेल ओनली. सम जो है याद करेंगे, सम एडिशन के लिए यूज होता है, एवरेज निकालने के लिए यूज होता है. तो देयर इज नथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर सपोज टू लर्न. इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्सेल. मैक्स, जो भी आपकी सेल रेंज है, लेट्स जस्ट से ये आपकी सेल रेंज है, आप सम की जगह पे यहाँ पे मैक्स लिख देते हो, ठीक है? A1 to A4, यू विल सी 60 वुड बी द आंसर, क्योंकि ये इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 60. और अगर आप यहीं पे मिन लिख दोगे, दैट स्टैंड्स फॉर मिनिमम, राइट? देन 20 वुड बी योर आंसर, करेक्ट? Then 20 would be your answer. Count the number of cells that contain number, कि कितने number of cells हैं आपके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं अब, राइट? एवरेज का फॉर्मूला, इफ यू विल स्टार्ट टाइपिंग AV ओनली ना आफ्टर कॉमा, इट विल गिव यू रेफरेंसेस. एवरेज है, एवरेज इफ है, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे. कहां से कहां तक हमें एवरेज निकालनी है? किन नंबर्स की? B के 2 से, ये रहा 2, सॉरी, B के 2 से, ये 2 है ना, B के 2 से मुझे एवरेज निकालनी है B के 8 तक, राइट? B2 to B8 and I have separated them using a colon. I can also use a comma as well. So इसकी एवरेज क्या आ गई कंप्यूट करके? 73. I can use the formula again. ऊपर वाली बार में भी मैं किसी सेपरेट उसमें भी अगर मैं यही चीज यहां पे लिख दूं, एवरेज ब्रैकेट में क्या था? B2 to B8 क्लोज. तो इसी वजह से ये यहां पे शो कर रहा है. यहां पे भी लिख सकती हूँ, यहां पे भी लिख सकती हूँ, नो वरीज.
Then we have certain logical functions. जो अभी functions की बात करी mathematical functions से, logical functions are like अगर इसकी value 10 से कम है, yes, no, all these things, etc. So if you use the word if in MS Excel, it performs a logical test. कि अगर इसकी 10 से वैल्यू है तो कॉलम पे आप yes लिख दोगे, अगर 10 से कम है तो आप no लिख दोगे. तो यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं इनको, राइट. एंड और evaluates multiple conditions and it returns true or false based on the conditional formatting that is there, not reverses the logical value of its argument. If 10 is not greater than this, right? So ये logical functions होते हैं कुछ. So यहाँ पे देखते हैं if B2 आपका जो B2 का status है delivered है, B2 equals to what have I put? I have put in double commas. यहाँ पे B2 में अगर मेरे को डिलीवर्ड का स्टेटस दिखाना है, कॉमा नो या यस, राइट. अगर डिलीवर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड, कुछ और चेंजेस उसमें करने हैं नहीं, क्योंकि द पार्सल हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड. इफ इट इज नॉट डिलीवर्ड, आउट फॉर डिलीवरी, इन ट्रांजिट एटसेट्रा, तो आई विल मेक श्योर येस या नो में से क्या लगेगा. ये फॉर्मूला लग के यहाँ पे नो येस खुद आ जाएगा. यू विल हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रिफरिंग टू व्हाट यू नीड फ्रॉम दी एक्सेल शीट. और हमेशा जब आपको कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी वाली डालनी है, देन यू विल हैव टू यूज, अगर वो मैथमेटिकल नहीं है, यू विल हैव टू यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा, सो टू से, राइट. Moving forward, the concatenate function. This function is used for what? This function is used for text, right? It joins two or more text strings into one. Concatenate का मतलब ही यही होता है कि दो चीजों को लिंक कर देना, दो कॉलम्स रोज को जोड़ देना, राइट. सो वी यूज दिस फॉर्मूला लेफ्ट राइट मिड में करने के लिए. len returns the number of the characters in a text string. देखते हैं एक बार कॉन्केटेनेट का एग्जाम्पल, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है हमारे A2 में, लास्ट नेम दिया हुआ है B2 में, और B2 से लेके B9 तक, A2 से लेके A9 तक एंड B2 से लेके B9 तक. सो आई वांट दैट इन दोनों का मुझे टाइप ना करना पड़े, तो आई विल यूज माय फॉर्मूला. व्हिच वन? कॉन्कैटिनेट A2 कॉमा डबल. व्हाई हैव आई लेफ्ट द स्पेस हियर? फॉर द स्पेस, कि डेविड व्हाइट में स्पेस आ जाए. अगर दोनों को कॉन्केटेनेट करके लिखेंगे तो देयर विल बी नो स्पेस. फॉर द स्पेस आई हैव लेफ्ट एन एम्प्टी डबल कॉमास हियर, राइट, एंड देन B2. और जब आप कभी भी इस तरीके से अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने की कोशिश करोगे कंट्रोल D करके भी, तो आपका जो फॉर्मूला ऊपर है वो यही लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है. यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रैग करोगे, यू विल गेट टू सी दैट you have just typed the formula. So then अगली रोज में भी रॉनी एंडरसन लिखा आ जाएगा with the space, टॉम बून लिखा आ जाएगा, सैली ब्रूक, जेरेमी हिल, so on and so forth. तो कॉन्केटेनेट टेक्स्ट फंक्शन है which is used कि आप दो जो अलग अलग सेल्स हैं उनके मैटर को साथ में लेके आओ. लेकिन just to incorporate the space, we are going to use the inverted commas with the space वाला thing, right? Then we have date and time functions. टुडे, आज क्या डेट है, अगर आप ये लिखोगे इक्वल्स टू टुडे, तो वो आपको आज की डेट बता देगा, राइट. डेट क्रिएट्स अ डेट वैल्यू फॉर अ सेपरेट ईयर, मंथ एंड डे कंपोनेंट्स. सो जैसे आपका होता है ईयर, मंथ, डे एटसेट्रा, दैट आर डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वी हैव, उस तरीके से डेट अरेंज हो जाएगी. डे, मंथ, ईयर, डेट के कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करेगा. नाउ व्हाट्स द टाइम नाउ, राइट. करंट डेट एंड टाइम क्या है, वो नाउ फंक्शन दिखाता है. डेट DIF, डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स. तो अगर किसी ने 18 को कोई चीज देखी है, राइट, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 14, 4, 24, तो ये डिफरेंस बता देगा. कितना डिफरेंस है? 4 डेज का डिफरेंस है, राइट. सो लेट्स जस्ट सी, दिस इज द डेट फंक्शन हियर इक्वल्स टू A2, B2, C2. मुझे ये तीनों चीजें डेट फॉर्मेट में चाहिए. तो ये क्या आया कि ईयर कौन सा है, 2020, 17 तारीख है, 4th मंथ है, राइट. एंड इफ आई ड्रैग दिस डाउन अगेन एज वेल, द सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड इन दी नीचे वाले सेल्स एज वेल. सो आई कैन टाइप द फॉर्मूला हियर, आई कैन टाइप द फॉर्मूला हियर एज वेल, राइट. और अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम का भी मैं यहाँ पे ऊपर भी टाइप कर सकती हूँ, ठीक है.
6 hours, 0 minutes, 0 seconds, which makes it 6 a.m., right? 6 a.m., 12 p.m., 18, that is 6 p.m., 24, 12 a.m. तो यहाँ पे I will have to make sure that I'm using what? 24-hour format. So time वाला फॉर्मूला आपको टाइम बता देगा, दो चीजों को, दो तीन कॉलम्स को जोड़ के, राइट? मिनिमम फॉर्मूला, minimum A to A5 we have just seen in the previous slides only कि minimum range दिखाएगा. तो अगर हम इसमें देखें, that is from C2 से C9 तक की वैल्यू देखनी है कि इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है. I can type it here, I can type it here as well, right? So it will give me the minimum number out of all the numbers that I have selected in the cells. ठीक है? Max will tell me the maximum numbers जो भी cells मैंने select करे हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने देखा है A2 से लेके, right? A2 से लेके A6, right? A2 से लेके A3 चूज करा यहाँ पे, 6 तो नहीं करा. अगर मैं यहां तक भी चूज करूंगी, देन मैक्स मेरे पास होगा यहाँ पे 200. बट अभी के लिए इन द फॉर्मूला एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू, दैट इज A2 से A3 तक चीज चूज करिए. तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 10.5 is greater than 7.2. So maximum number it has given me as the output, right? Maximum number it has given me as the output. So I hope with these pictures, these examples, the pretty much simple things, the formulas are clear to you all. If you still have any doubts, you can comment down below and let me know. I'll see you guys in another video. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.